उनके इल्म में बरकत कीजिए, उनकी रोजी में बरकत कीजिए, उनकी इज्जत में बरकत कीजिए, हम सबकी सेहत में बरकत कीजिए। अच्छा तुम नजर से असली पन्ने अनाज असली पन्ने समूर साने मौला साने पैदा साने वजीर है करके दो अच्छा पाकिस्तान खता बख्शो साने साहू खता बख्शो हाज़रीन दोस्तों, आज के इस मुबारक दिन पर जब अल्लाह ताला की रहमत हमारे कश्मीर पर एक बार फिर जारी है, सारे विंटर में, सारी सर्दियों में हम इस रहमत का इंतज़ार करते रहे, लेकिन ये रहमत आज के ही इस मुबारक दिन के लिए हमारे गौसी पाक, हमारे परवरदिगार ने मुकर्रर कर रखी थी। जब हम आज जनाब हजरत पीर मुर्शिद शाह गुलाम कादिर साहब की बरसी मना रहे हैं, ये उनकी बरसी की तकरीब है। जिसको हमने सिर्फ 2 हफ्ते पहले अमृतसर में उनके मरकज पर, उनके आस्थान आलिया पर अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो कश्मीर से हमारे साथ वहाँ तशरीफ ले गए थे, और कुछ ऐसे दोस्तों की मदद से जो वहाँ के बाशिंदे हैं, गो के अलग अलग मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, अलग अलग फिरकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जनाब हजरत गुलाम कादिर शाह साहब की दरगाह के साथ जुड़े हुए हैं। ये तकरीब हमने वहां मनाई थी पहले। ये दरगाह शरीफ हकीम वाली गेट के अंदर एक बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई थी। जैसे कि हम सब बरसकीर के रहने वाले जानते हैं कि हमारे ऊपर एक ऐसा पुराशुभ दौर भी आया जब इंसानों का दुश्मन हुआ, जब इंसानियत ने हैवानियत का लिबादा ओढ़कर एक दूसरे का गला काटा। उस जमाने में यही दरगाह, यही मरकज, यही आस्थान आलिया हर खास व आम के लिए, चाहे वो किसी भी फिरकी से ताल्लुक़ रखता था, किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता था, किसी भी जुलूस के साथ ताल्लुक़ रखता था, उनके लिए ये अमन का गहवरा बनी, पनाहगाह बनी। सिख भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, निचले तबके के लोग भी, ऊंचे तबके के लोग भी, औरत मर्द बच्चे सब के लिए ये एक ऐसी पनाहगाह बनी जहाँ तमाम वक्त अल्लाह की रहमत दस्तगीर दो जहां की रहमत उन पर एक बहुत बड़ी दीवार की तरह उन्हें अपनी पनाह में लेते रहे। जनाब हजरत कादरी साहब हमारे पीर मुर्शिद जनाब हजरत सूफी अब्दुल नबी साहब की बुजुर्ग थे, उनके पीर मुर्शिद थे।
اور اس زمانے میں جناب حضرت صوفی عبدالنبی صاحب یہی امرتسر میں خود بھی مقیم تھے، اور بہت سے کشمیریوں کے لیے بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے وہ روحانیات سے فیضیاب ہو کر واپس آتے تھے۔ قادری صاحب اپنے پیر و مرشد کے حکم پر ایک بار کشمیر بھی تشریف لے آئے۔ کشمیر میں ان کے قیام کے بارے میں آج کل ہم کچھ کم ہی جانتے ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ وہ اسلام آباد، جسے اننت ناگ بھی کہتے ہیں، وہاں تشریف لائے، اور ہمارے یہاں دارالشکوہ مسجد جو آج کل شیر باغ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور وہ دارالشکوہ والی پتھر والی مسجد آج بھی موجود ہے، اسی پر قیام کرتے تھے اور وہی ٹھہرتے بھی تھے، اور بہت دیر تک، بہت مہینوں وہ وہاں مقیم رہے، کیونکہ ان کی زبان پنجابی تھی، اور اس زمانے میں ہمارے اننت ناگ میں پنجابی جاننے والے کم ہی لوگ تھے، تو اس وجہ سے لوگ ان کی بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کچھ رشتہ دار، ہمارے قریبی رشتہ دار کچھ، ان کی خدمت میں اس زمانے میں بھی لگے رہے۔ دانتر میں ایک گھر ہے، اور جس گھر کے فرد تعلیم میں بہت آگے ہیں، اسی گھر میں عبدالرحمن نامی ایک شخص بھی تھا، عبدالرحمن ملک صاحب۔ یہ ملک صاحب اس زمانے میں بہت چھوٹے تھے، اور ان کا بیان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب دارالشکوہ مسجد کی طرف جاتا تھا، 10-15 سال کا لڑکا تھا اس زمانے میں وہ، تو قاضی صاحب انہیں پنجابی زبان میں کچھ کہتے تھے جو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن ہاتھ سے جو اشارے وہ کرتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کی پھٹی ہوئی قمیض ہے اس کو ذرا ٹھیک کر کے لائے، یا ان کی کلائی مبارک یا ان کی قمیض کو دھو کر لائے، اور وہ یہ کام بخوبی سر انجام دیتے تھے۔ اور جس دن انہیں جانا تھا، اس دن انہوں نے اس بچے کو، اس عبدالرحمن کو جو انہوں نے بچا ہی تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر بہت دیر تک کچھ پڑھتے رہے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کر رہے تھے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ہر فردوس کی، ہر جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے پڑھتے رہے، اس کے بعد کہا، سر پر ہاتھ رکھا، کہا جا بچے جا، عیش کر۔ اور وہ عبدالرحمن میں خود بھی جانتا ہوں کہ ہمارے ساری عمر عیش کرتے رہے، اپنے ہاتھ سے کماتے رہے، اور کچھ ایسا کماتے رہے جو ان کے جو دوسرے رشتہ دار جو گیزٹڈ آفیسرز تھے، بڑے بڑے عہدوں پر تھے، ان کے ہاں اتنی دولت کی فراوانی نہیں رہی جتنی اس شخص کے پاس، اس عبدالرحمن کے پاس رہی، اور تمام عمر وہ خوش رہے۔ یہ ان کا فیض تھا، قادری صاحب کا فیض تھا، اور اس کے اپنے بچے سارے سب کے سب تقریباً گیزٹڈ آفیسر ہو گئے، انہوں نے پڑھا لکھا، انہوں نے، اور دنیاوی طور پر بھی انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جب قادری صاحب واپس چلے گئے، تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری زبان، ان کی زبان کو کوئی سمجھ نہیں پایا، اس لیے انہوں نے اپنے مرید خاص، جو ان کا چہتا مرید تھا، بہت قریبی مرید تھا، ان کو کشمیر بھیجا۔ یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، 1947 سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہیں کے کہنے پر ہمارے پیر مرشد جناب حضرت عبدالنبی صاحب امرتسر سے، لاہور سے نہیں، جناب صوفی صاحب 47 کے بعد لاہور منتقل ہو گئے مستقل طور پر۔ تب تک وہ عارضی طور پر کبھی
अमृतसर में रहा करते थे लाहौर में, लेकिन उसके बाद वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए, लेकिन 1947 के बाद। इसलिए अमृतसर से वो तशरीफ ले आए कश्मीर में, जहाँ उन्होंने कादरी फाजली सिलसिले की बुनियाद रखी, ये सिलसिला शुरू किया। और उसकी एक वजह भी थी, क्योंकि जब कादरी साहब यहाँ आए, अक्का दुक्का लोगों से बातें की, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर तसव्वुफ को समझने वाले अब बहुत कम रह गए हैं, और जो कुछ तसव्वुफ के नाम पर बिक रहा है, चल रहा है, वो तसव्वुफ नहीं है, वो कुछ जिसे हम आमतौर पर कहते हैं तहुमात कहते हैं, या दरवेशाना बातें कहते हैं, जिसमें करामातों का जिक्र होता है, तय मकान और तय जमान की बातें होती हैं, लेकिन जो असल बुनियादें हैं वहतुल वजूद की और वहतुल वजूद समझने की मंतक की, या अल्लाह शनासी की, या मारिफत की जिसे आप कहें, या ज़ातुल सिफात की बात, वो यहाँ पर बहुत कम लोग जानते थे। जानने वाले थे और बहुत लेकिन कम थे। तो उन्होंने यहाँ से वापस जाकर सूफी साहब को, जो उन्होंने यहाँ पर कश्मीर में सूफियत को इन तहुमात से आज़ाद करने की कोशिश की, तंग नजरी से आज़ाद करने की कोशिश की, और इसे एक खास मंतक की बुनियाद पर खड़ा कर दिया। ये जनाब हज़रत सूफी साहब ने इन्हीं कादरी साहब के कहने पर किया। क्योंकि आज हम सिर्फ कादरी साहब की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस बहस को यहाँ पर रखते हैं और कादरी साहब की तरफ फिर लौट आते हैं। आजकल उनका जो वहाँ पर जो आस्तान आलिया है वहाँ पर अमृतसर में, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि वो हकीम वाली गली के हकीम वाली उस गेट के अंदर है, वो बहुत बड़े रकबे पर फैले हुए, लेकिन अब वो आजकल वो बहुत हालात नामसाइद हालात की वजह से और दूसरे हालात की वजह से चंद कमरों पर मुश्तमिल रह गई है। सिर्फ वही चंद कमरे रह गए हैं वहाँ पर जो उनकी अपनी रहाइशगाह थी, जहाँ हजरत काजी साहब और उनकी अहलिया हमारी माता जी रहा करती थी, क़याम करती थी। और उसी रहाइशगाह में उनकी लहद मुबारक भी रखी हुई है, ज़ाहिर तौर पर लहद मुबारक भी वहीं पर है, उसी कमरे में। हैरानी इस बात की है, जिन लोगों के साथ खुदा होता है, जिन लोगों के साथ रसूल खुदा होते हैं, जो मकबूल खुदा होते हैं, उनकी दरगाहों की, उनके घरों की हिफाजत करने के लिए खुदा ताला अपने इंतजाम खुद करते हैं। तो वहाँ पर भी, हालांकि मुसलमान तो आप वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे सिख भाई या कुछ हिंदू भाई इसी दरगाह की, इसी मरकज़ की खिदमत में लगे हुए हैं, और वो ये काम बाहसनी खूबी कर रहे हैं। आज भी बहुत यकीन से कर रहे हैं, भरोसे के साथ करें, और एक खास ईमान के साथ कर रहे हैं। सुबह शाम वहाँ दरगाह की सफाई करनी है, दरगाह का चराग जलाए रखना है, दरगाह में फूल बिछाने हैं, दरगाह में टाइल्स बिछाने हैं। ये सब काम यही जो हमारे लिए तो गैर मुस्लिम है, लेकिन अल्लाह के दरबार में तो वो बहुत हमसे ज़्यादा बेहतर लोग हैं, क्योंकि वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ रसूल की रज़ा के लिए, सिर्फ इस आस्तान आलिया में रहने वाले इस घर के मकीम की रज़ा के लिए इनकी खिदमत कर रहे हैं। आप ये बात सुनकर शायद ज़्यादा हैरान ना हो जाए कि जब हमने उन्हें ऑफर की, कि हमने उन्हें कहा कि हम कुछ पैसा देंगे
इस मरकत की हिफाजत के लिए, इस घर की तामीर नाम के लिए। तो वहाँ के ये लोग जो कुछ दुकानदार भी थे, बहुत छोटे छोटे कारोबार करने वाले थे, उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं कैसे हो सकता है, हम खुद कर रहे हैं, हमारे अपने पैसे, हम इन्हीं दरगाह की वजह से जिंदा हैं, इन्हीं दरगाह की वजह से जो हम कमा रहे हैं, जो हमारे बच्चे आजकल इतना कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जिंदा है, सेहतमंद है, तो ये हम इसी मरकत की वजह से, इसी दरगाह की वजह से है। हमें आपकी जरूरत नहीं, आप हमें सिर्फ वहाँ से आशीर्वाद भेजिए, आप वहाँ से हमें सिर्फ दुआएं भेजिए, आप यहाँ आते रहें इस मरकत में, इस दरगाह के लिए। आपकी दरगाह है, हमारी भी दरगाह है, हम खुद इसका इंतजाम करेंगे। यह अलग बात है कि हम चाहते हैं कि वहाँ इस दरगाह की तारीफ ना भी हो। इसके लिए हमारे जो दोस्त हैं, अभी कुछ दिनों से बहुत से लोग पैसे लेकर भी आ गए, अपना ताउन लेकर भी, तरह तरह का ताउन लेकर आ गए हमारे पास, वो सब चाहते हैं, लेकिन हम ये उनकी मर्जी से कर रहे हैं। अगर हमें वहाँ करना भी होगा कुछ, तो हम उनकी मर्जी से, क्योंकि वो लोग उनकी ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, उनका ज़्यादा ईमान है उन पर, हम तो बहुत दूर हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम उन लोगों को भी इस प्रोग्राम के तहत, इस छोटे से इवेंट के थ्रू माध्यम से उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं कि खुदा ताला उनकी ये खिदमत कबूल करे। हमारे अल्लाह, हमारे रसूल खुदा, हमारे गौसे पाक उनकी ये खिदमत कबूल कर ले और उन्हें दर्जे पर नवाजे जो उनका हक है, इस खिदमत से आवाज बनता है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और चाहते हैं कि जो शांति का, जो अमन का माहौल, जो भाईचारे का माहौल उन लोगों ने कायम रखा है अमृतसर में, इस आस्थान आलिया में, इस आस्थान आलिया के इर्द गिर्द, हमारे कश्मीर को भी ये नसीब हो। हमारा कश्मीर भी भाईचारे में, अमन शांति में, उनसे अगर सबकत नहीं लेता तो उनकी बराबरी में आ जाए। तो यहाँ भी शांति हो, यहाँ भी शांति, यहाँ उन्हीं के तफील, इसी दरगाह के तफील, इन्हीं बुजुर्गों के तफील, इसी गौसी पाक के तफील अपने अल्लाह से दुआ करते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा माहौल पैदा हो जाए। तो ये तो जो आज की गुफ्तगू है, आज की जो बातें हैं, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आप अपने दोस्तों को, अपने रफीकों को, अपने जानने वालों को ये बता दें कि लोग किस तरह से बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मजहबी लिहाज के, बगैर किसी जिन्स के लिहाज के। क्योंकि एक अच्छी तहजीब, अच्छा ईमान, अच्छे लोग वही हैं जो इन छोटी छोटी बातों से ऊपर आ जाएंगे और इंसान को इंसान के तौर पर समझें। यही हमारा दीन है, यही इस्लाम का मकसद भी है। इस्लाम का मकसद भी है कि इंसान को इंसान बनाना, हैवानियत से निकालना, तहुमात से निकालना, गलत फहमियों से निकालना, कम इल्मी से निकालना, एक दूसरे से के बारे में जो हमारे गलत ख्यालात हैं उनसे बाहर निकालना। इस्लाम का असल मकसद तो यही था कि इंसान को इंसान बनाना, क्योंकि खुदा को इंसानों की ही जरूरत है, क्योंकि इंसान ही खुदा की सारी तख्लीक का मकसद ही तामीर इंसान था। मिलाद आदम का तस्वुर ही इसी पर मुनस्सर है। हम चाहे हम इसे पर में मुसलमान कहें, क्योंकि ये नाम भी अल्लाह का दिया हुआ है, ये भी अल्लाह का दिया हुआ और बहुत खूबसूरत नाम है। हम इस नाम से भी इंसान को ही समझते हैं। दीन तो इंसान का है ना,
ہمارا اسلام جو ہے یہ انسان کا ہی دین ہے، میلاد آدم کا ہی دین ہے، یہ انسان بننے کا دین نہیں ہے، انسان بنانے کا دین نہیں ہے اسلام یہ. لہذا اسی دین کی حفاظت کے لیے یہ بزرگ آئے، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اسی دین پر، اسی مقصد کے لیے اللہ کے دین کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی معرفت کو عام کرنے کے لیے ہماری کوشش اللہ تعالیٰ قبول کرے.